गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर 5 एंड द फर्स्ट थ्री लॉ ऑफ मोशन. Today we are going for the numerical and the next continuous topic. Okay, so first of all, according to the three law and the momentum, we have to going for the numerical. Okay, example 5.2. Example number 5.2. Your statement is a bullet of mass 0.04 kg moving with the speed of 90 meter per second. Okay, so mass equal to 0.04 kg. Moving means initial speed 90 meter per second. Okay, enters a heavy wooden block and it stop. It stop मतलब final speed 0. Final speed 0. At the distance of 60 centimeter, so d equal to 60 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. We have to convert it into meter. 0.6 meter. Okay, what is the average resistive force? Okay, we have to find the value of force. मुझे force find out करना है. So F equal to question mark. So first of all, कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? You have to write the all the datas. It is a 0.5 mark of data. Suppose you have to ask a question of 3 mark, then you have to write all the data. It is 0.5 mark. Then you have to write the formula, again 0.5 mark. Then the calculation 1 mark answer and unit. Okay, so all the numerical full portion, then you got the total 3 mark or 2 mark. Okay, 2 out of 2 or 3 out of 3. First of all, F equal to ma, but we don't have acceleration, so A equal to V minus VO upon T, but we don't have time also. So first of all, we have to use which formula? So we get the acceleration. कौन सी formula use करेंगे तो मुझे acceleration मिलेगा? Okay, we have three formula. V equal to VO plus AT, but we don't have time. Second, D equal to VOT plus 1 half AT square. Again time. Okay, so we have to use the formula for the without time, which is 2AD equal to V square minus VO square. 2 equal to 2. A find out करना है. D means 0.6. Final 0. Initial 90 square. So acceleration equal to 90 into 90 or 2 into 0.6. So 45 into 15 into 10, it is our acceleration. I don't have calculator and you can use the calculator in Gujarat board. तो इसे सॉल्व करना है आपको. एक जो भी आया आपका, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ना F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, मास 0.04 और एक्सेलरेशन यहाँ पे जो भी आया हो. अभी ऐसा हो तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं कैलकुलेटर भी अपने साथ रखूंगा और कैलकुलेट करके हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्या आंसर आ रहा है. ओके, तो आपको ये जो भी आंसर है आपको यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू योर फाइनल आंसर इन न्यूटन. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से हो भाई. These are first question, example number 5.2. Now we are going for 5.3. Okay, we are going for 5.3. In your 5.3 statement is the motion of a particle. The motion of a particle of mass m is described by y equal to u plus, okay, y equal to ut plus 1 half at square. Done. Find the force. Okay, we have to find the value of force.
F इक्वल टू एम ए, मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, F इक्वल टू एम ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। भाई चैप्टर 3 में आता था डिफरेंशिएशन, ओके, इफ वी डिफरेंशिएट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गॉट वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी अपॉन टाइम वी गॉट एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू टू टाइम डिफरेंशिएशन, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, देन वी गेट द एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल v इक्वल टू dy by dt, okay, this is your equation ut, differentiation of ut is u 1/2 at square, तो ये 2 आगे आ जाएगा 280, okay, तो ये 2 कट हो गया, so my final answer u plus 80, this is the velocity, but now we got the acceleration, okay, so now dv by dt, okay, differentiation of constant thing is 0 and differentiation of 80 is equal to a, okay, so final answer is a. Now f equal to ma, acceleration is a, so f equal to ma, you got the final answer, okay. ये था हमारा second question 5.3, example number 5.3. It is a 5.2, it is a 5.3. Now 5.4. In 5.4, your statement is a batsman hit back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed. Okay, मतलब ये हुआ कि initial speed 12 meter per second, final speed again 12 meter per second, just change the direction, okay, otherwise both the speed are same. Next, if the mass of the ball is 0.15 kg, 0.15 kg, determine the impulse imparted on the ball, okay, भाई हमें impulse चाहिए, हमने डिस्कस किया था ये लास्ट टाइम. Impulse means force into displacement is known as impulse, या फिर change in momentum, दोनों में से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा. सो योर स्टेटमेंट इज कि सपोज हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बॉलिंग कर रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ओके, डन. चलो ठीक है, सपोज बॉलर ने बॉलिंग की, तब स्पीड कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड. फिर सामने बैट्समैन ने शॉट लगाया, तब भी स्पीड कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड. सिर्फ एक चेंज हुआ कि जब बॉलिंग की तब डायरेक्शन ये थी और जब बैटिंग की तब डायरेक्शन ये थी, तो दोनों में से एक को माइनस लेना पड़ेगा. तो सपोज मैं सेकंड को माइनस ले रहा, किसी को भी आप ले सकते हैं, या फर्स्ट और सेकंड व्हाटएवर, ठीक है, डन. ये हमारा मास है, हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम मींस इंपल्स. सो इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी p1 माइनस p2 और p2 माइनस p1. चलो यहाँ पे लेते हैं p2 माइनस p1, ओके. p इक्वल टू क्या होगा mv. अब एक चीज कि जब हमने बॉल फेंका तब बॉल का मास था 0.15 kg. अब बैट्समैन ने शॉट लगाया तो कि मास चेंज थोड़ी हो जाएगा, मास तो उतना ही रहेगा बॉल का 0.15 kg. तो मुझे मास कॉमन लेना है, mv2 माइनस mv1. ये फॉर्मूला में हमें वैल्यू लिखनी है, ठीक है. तो मैं वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे उस हिसाब से. डन. डेल्टा पी m कॉमन निकल गया, v2 माइनस v1, मास है 0.15, माइनस 12 मतलब 24 माइनस में. अभी हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा यूनिट लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड या फिर उसका दूसरा यूनिट न्यूटन सेकंड. बोथ आर सेम थिंग, दोनों यूनिट एक ही है भाई, केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड. इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वन मोर थिंग कि सर आंसर तो माइनस में आएगा, यस आंसर माइनस में आएगा, लेकिन हमें लिखना है प्लस में, और एक लाइन लिखनी है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट द ऑपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव साइन इंडिकेट द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. तो ये तीन क्वेश्चन थे 5.2, 5.3, 5.4. अब तक हमने जो भी टॉपिक किए उसके रिलेटेड थे ये सर, ओके. तो एक बार ध्यान से लिख दो, शांति से, कोई भी जल्दी नहीं है. उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. (5.2, 5.3 and 5.4).
नेक्स्ट टाइम से ब्लैक पेन यूज करूंगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो. ओके, आई हैव टू यूज द ब्लैक पेन सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. The name of the topic is law of conservation of momentum. भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्ड सुना है आपने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन? सपोज हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, उसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनीवन? यस, सॉरी, रिपीट करो थोड़ा. सही है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ. वी डोंट or we can't produce energy, we can't destroy energy, we can convert it into the one form to the another form. मतलब क्या? हम एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, हम एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आप लोग बोलेंगे कि सर हम क्या बात कर रहे हैं सर, सरदार सरोवर डैम में हम वाटर में से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना? नो, इट इज नॉट प्रोड्यूस, इट इज कन्वर्ट. जब वो वाटर में एनर्जी होती है ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टेडी कंडीशन में. उसको हम ऊपर से नीचे करते हैं तो वो टरबाइन के ऊपर आती है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो वो सिर्फ कन्वर्ट हुआ. उसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जब ये वर्ल्ड प्रोड्यूस हुआ था तब जितनी एनर्जी थी ना अभी भी उतनी ही एनर्जी है, सिर्फ उसको कन्वर्ट कर दिया है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी. तो चलो अभी हम बात कर रहे हैं मोमेंटम, तो उसमें भी वही होगा? नहीं, वो पूरा अलग चीज़ है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में, फिर मैं उसके बाद टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज की डेफिनेशन बोलूंगा, लेकिन आपको समझने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज. ओके, कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ओके, तो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मोमेंटम सेम रहेगा. अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा. जस्ट एग्जांपल. ओके, यही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे. सपोज दो कार, ओके, ये अलग स्पीड से आ रही है, ये अलग स्पीड से आ रही है, दोनों का मोमेंटम अलग है. सपोज कार कोलाइड हो रही है आगे से या पीछे से, तो बिफोर एक्सीडेंट और बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम रिमेन सेम. एडिशन ऑफ द मोमेंटम विल रिमेन सेम. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, तो कोई बोलेगा कि सर ये तो आपने समझाया है ना, हमें लिखना क्या है? ये थोड़ी लिखेंगे सर कि एक कार आ रही थी दूसरी कार आ रही थी. नहीं, ये नहीं लिखना है. ओके, ये नहीं लिखना है. आपको जो लिखना है वो मैं अभी बोलूंगा. ओके, लेकिन सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सबसे पहले समझ लो. उसके बाद हम टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, वो लॉ लिखेंगे. ओके, सिंपल लैंग्वेज में बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मोमेंटम सेम रहना चाहिए. इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे ध्यान से देखना. ओके, टेक्स्ट बुक में यही एग्जांपल दिया है, मतलब मैं ये अपना एग्जांपल नहीं दे रहा है. भाई मेरे हाथ में एक गन है. ओके, तो जैसे मैं उसका ट्रिगर ऐसे करूंगा ना तो गन में से बुलेट आगे जाएगी और मेरा हाथ पीछे जाएगा. क्यों? मोमेंटम नो. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब क्या कि बुलेट जितनी स्पीड से जितने फोर्स से आगे जाएगी उतने ही फोर्स से गन पीछे जाएगी. एक्शन एंड रिएक्शन. तो उसका मतलब तो सर लेकिन वो तो थर्ड लॉ था, तो उसका अभी इसमें क्या रिलेटिव है? ओके, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ. जब मेरे हाथ में गन थी तब गन की स्पीड कितनी थी? 0, क्योंकि वो मेरे हाथ में थी. ओके, अभी मैंने फायर किया मतलब ट्रिगर दबाई तो इसमें से बुलेट आगे गई और गन पीछे गई. तो अगर मैं बुलेट की और अभी जब गन पीछे जा रही है उन दोनों का मोमेंटम ऐड करूंगा ना तो जो पहले मोमेंटम था ना उतना ही रहेगा. उसका मतलब पहले कितना मोमेंटम था? 0. तो उसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों का मोमेंटम का ऐड करूंगा तो मोमेंटम सेम रहेगा. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख दो. ओके, टॉपिक का नाम क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, अभी सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सपोज एग्जाम में ये टॉपिक है
2 और 3 मार्क में आ सकता है। तो क्या लिखना है? सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में क्या है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व। वन मोर टाइम। ओके, एक और बार जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, वन मोर टाइम। द टोटल मोमेंटम of an isolated system remains conserved of a particle remains conserved। मतलब सपोज ऐसा नहीं कि दो पार्टिकल मेरे साथ, ओके एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक केमिकल बॉम्ब था, स्टेडी कंडीशन में यहाँ पे पड़ा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। सडनली वो ब्लास्ट हुआ, 3 अलग अलग फ्रैगमेंट, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है। तो इनिशियल में कितना मोमेंटम था? 0। उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उन तीनों की मोमेंटम ऐड करूंगा ना तो आंसर 0 आएगा। ऐसा एक है एग्जांपल, मैं दूंगा आपको होमवर्क में, बहुत मजा आएगा। अच्छा है, ठीक है? तो ये याद रख लो, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व। कंप्लीट। ये था स्टेटमेंट। अभी हमें एग्जाम्पल देके समझाना है, तो आपको ये वाला ही एग्जाम्पल देना है, सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना। ओके, तो स्टेटमेंट हो गया हमारा, डन। पीबी एंड पीजी। पीबी मतलब क्या? मोमेंटम ऑफ बुलेट जो आगे जाएगा, और ये मोमेंटम ऑफ गन जो पीछे जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन, सपोज में हम यहाँ से ट्रिगर करेंगे तो बुलेट आगे जा रही है और गन पीछे जा रही है, तो ये एक्स एक्सिस लेंगे तो ये -x होगा ना, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मोमेंटम ऑफ बुलेट, वो वाला बुलेट नहीं है भाई, ये वाली निकल रही है वो बुलेट। एंड द नेक्स्ट वन इज मोमेंटम ऑफ गन, बर्निंग गन। ओके, अंदर लिखना इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो इनिशियल में मोमेंटम कितना था? स्टेडी था, मतलब वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम भी 0। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल में क्या लिखेंगे? पीबी प्लस पीजी। अब मैं एक को उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? पीबी इक्वल टू माइनस पीजी। उसका मतलब ये हुआ इन दोनों का मोमेंटम सेम होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 0। तो पहले भी 0 था, अब भी 0 ही है। ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत यूज होते हैं। ओके, जेईई नीट में भी आएंगे, जब मैं उसका लेक्चर लूंगा 1-2 दिन बाद, तब उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, तो आप ये इसका ध्यान रखें। डन? कोई डाउट यहाँ तक? श्योर? लॉक किया जाए? कंफर्म? ओके, डन जो। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2 to 3 मार्क के लिए स्टेटमेंट। और ये सिर्फ इतना नहीं लिखना है भाई, एक चीज़ याद रखो, जस्ट एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ कि भाई चैप्टर 3 की बात करें, डिराइव द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। वो 4 और 5 मार्क में आ सकता है। वो 3 इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो उसमें क्या होता है? टोटल 3 चीज़ है या फिर 2 चीज़। ओके, डायग्राम, डेरिवेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, डायग्राम आप अच्छे से करेंगे, डेरिवेशन भी अच्छे से करेंगे। ओके, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा अच्छे से। मैं उसको कथा बोलता हूँ। कौन सी कथा? स्वाहा, स्वाहा, वो नहीं, वो तो वो अलग चीज़ है। उसमें क्या करना है? सपोज के भाई कोई एक क्वेश्चन है, डायग्राम है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एज शोन इन द फिगर। सपोज मैं उस क्वेश्चन की बात करूँ, एज शोन इन द फिगर वी हैव अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी vo, एट t इक्वल टू t वेलोसिटी v। ये सब लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट डायग्राम से बात स्टार्ट करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, हमें सब कुछ लिखना है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है, एक्सप्लेनेशन भी करना है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या? कथा, और सबसे लास्ट में क्या करना है? डेरिवेशन। ओके, और सब टॉपिक में कथा तो आएगी भी,
सपोज ये मैंने लिखा ये टॉपिक, तो इसमें भी ये स्टेटमेंट है और ये तो उसके बीच में भी कथा तो आएगी ना। ओके, तो हो सके तो नहीं, कंफर्म टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज यूज करनी है। ओके प्लीज, ऐसा नहीं आप अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें सेफ साइड की वजह से टेक्स्ट बुक की ही लैंग्वेज यूज करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपके पास। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देख लो सबसे पहले तो ये अच्छे से पहले ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। क्या है भाई? इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे, सपोज के भाई आप इसकी बात करो, मुझे ये ऐसे करना है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? वो पॉइंट कि जिससे ये सेंटर में हो जाए और ये गिरे नहीं मेरे हाथ से, उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, जैसे हम फुटबॉल में करते हैं ऐसे करके इक्विलिब्रियम, कभी वो गिरे नहीं मेरे हाथ से, मतलब उसकी उस पॉइंट पे वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल 2 पॉइंट के लिए, 3 पॉइंट के लिए और मोर देन 3 पॉइंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज वी हैव 2 पॉइंट। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, तुम में से एक आ जाओ, यस यू यहाँ पे आ जाओ जल्दी, कम। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मैं यहाँ से फोर्स दे रहा हूँ और सामने से दूसरा वो स्टूडेंट है हमारा, ये वाला, हाँ, ये फोर्स दे रहा है और ये ऑब्जेक्ट स्टेडी खड़ा है। उसका मतलब क्या हुआ कि मैं जितना फोर्स दे रहा हूँ वो भी उतना ही फोर्स दे रहा है, इसकी वजह से वो स्टेडी खड़ा है। अगर मेरा फोर्स ज्यादा होता तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाता, अगर सामने का फोर्स ज्यादा होता तो ऑब्जेक्ट पीछे जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टेडी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मतलब क्या कि दोनों साइड से फोर्स सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। Okay, so if we discuss for a two force in equilibrium, so F1 plus F2 equal to 0, so it means that F1 equal to F2 but in opposite direction. दोनों सेम होंगे लेकिन opposite direction. धनंजय भाई, श्योर? ओके, सपोज मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये यहाँ पे दे रहा है, ये यहाँ पे दे रहा है, ये यहाँ पे दे रहा है। ओके, उसमें भी सेम है कि इन तीनों का एडिशन, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? अगर तीनों ऐड हो रहे हैं उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पे, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब इफ वी हैव 3 पॉइंट और 3 फोर्स, सो द एडिशन ऑफ दीज 3 फोर्स इज 0। एडिशन ऑफ दीज 3 फोर्स इज 0। F1 plus F2 plus F3 equal to 0। तो ये था आपका इक्विलिब्रियम। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत मजे की बात ये है कि ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल में नहीं आती। नो, ये नहीं आता, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये एग्जाम में थियरी में भी नहीं आएगा, अगर आए तो 2 मार्क का आ सकता है, लेकिन सिर्फ याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके न्यूमेरिकल में नहीं आते लेकिन इसके आते हैं भाई, तो ये याद रखना है। ओके, सो जल्दी जल्दी दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले किया न्यूमेरिकल्स 5.2, 5.3, 5.4, 3 न्यूमेरिकल्स किए। उसके बाद हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में या उसके भी बाद, ओके। और उसके बाद हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मैंने बोला ऐसे कि जिस पॉइंट पे आंसर जीरो हो जाता है उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास दो फोर्स है और आंसर जीरो, उसका मतलब क्या होगा कि दोनों सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तीन पार्टिकल, ओके, तो तीन पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम है, उसका मतलब क्या, तीनों का एडिशन जीरो ही होगा। डन। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो आज के दिन के लिए हम इतना रख रहे हैं भाई, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर ले कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करने वाले, फ्रिक्शन। माइंड ब्लोइंग टॉपिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, चैप्टर 5, सुपर चैप्टर। बहुत मजा आएगा, JEE नीट सबके लेक्चर में बहुत मजा आएगा, लेकिन कब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही, अदरवाइज नो, ओके, अदरवाइज नो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने, तो नेक्स्ट लेक्चर से टोटली नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपके लिए, ओके, टोटली न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल स्टूडेंट। सो प्लीज टेक केयर इन द लेक्चर and concentrate in the lecture. Done. Bye bye. See you next lecture. Bye.